Hey chams, so let's check it out today unit 2. So we are going to check it out unit 2 in this is for the class 11 of physical education. For which board we are checking it out? It is for CBSE. So CBSE का physical education for class 11 unit 2 देखने वाले. This is also going to be in the parts. Okay, how many parts? Two parts, right? So let's check it out what we are going to check. Before that, let's know little about me. So my name is Asif Iqbal and I am having 11 years of experience in teaching physical education. Along with this, I have qualified as an assistant professor in which subject? Physical education. I have done my masters as well as bachelors in physical education, and I have also done my NIS in athletics. I am a national medalist, marathon runner as well as motor skill trainer. So this is all about myself, right? So what is today's topic? Today's topic is, as we all know, unit 2, which is going to be in two parts. So what are the topics in part 1 and part 2 we will be checking out. So आज हम देखने वाले ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन. ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन में पहले क्या देखने वाले? ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स एंड स्पेशल ओलंपिक्स, राइट. फिर उसके बाद में ओलंपिक सिंबल, आइडियाज, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज. उसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में देखने वाले, इंडियन ओलंपिक कमेटी. इसका शॉर्टकट क्या है? आईओसी, एंड इसका शॉर्टकट है आईओए, राइट. सो पॉसिबली वी विल बी चेकिंग पार्ट 1, ये दो देखने वाले हैं, राइट. पार्ट 1, then this is going to be the part 2, if or else the second option is this is part 1, right. Okay, sorry, this is only, this one is the part 1, right. This one is will be the part 1. Okay, and this three will be the part 2, hopefully, right. This is plan A, this is plan B. Let's see which plan is going to work out. So the video will not going to be more than 30 minutes. So that's the maximum time which I can give for part 1. Okay, so Olympics. ये Olympics क्या होता है? So Olympics is divided in two parts. एक होता है ancient Olympic, एक होता है modern Olympics, right. Ancient Olympics क्या होता है? Greek के टाइम जो हो रहा है ना, इट यूज टू हैपन ओनली इन ग्रीक, नॉट इन एनी अदर कंट्री. कोई भी कंट्री में ना होता है एंशिएंट ओलंपिक्स, ओनली इट यूज टू हैपन इन ग्रीक इटसेल्फ, राइट. और इसे एक रिलीजियस, राइट, इसे एक रिलीजियस, समझ जाए, रिलीजियस फेस्टिवल के जैसा ट्रीट किया जाता है. दे यूज टू ट्रीट इट एज एन रिलीजियस फेस्टिवल, नॉट एज एन ओलंपिक्स. सो बट फॉर दिस दे यूज टू प्ले गेम्स इन द, सो दैट्स द रीजन वी कॉल्ड इट एज एन ओलंपिक्स. समझ गए ना. सो इसका एक छोटा सा स्टोरी बता दूंगा. सो ग्रीक ओलंपिक्स क्या हुआ? एथेंस एंड स्पार्टन्स के बीच हमेशा लड़ाई होते रहती है. सो यहाँ पे हमेशा वॉर होते रहता है ये दो के बीच. वॉर होने से क्या हुआ? बहुत सारा लॉस हो रहा है. व्हाट आर द लॉसेस? लाइफ, रिसोर्स, राइट, लैक ऑफ डेवलपमेंट. ओके, लैक ऑफ डेवलपमेंट हो रहा है. सो लैक ऑफ डेवलपमेंट होने से, सो इतना ये पूरा तो कोई भी कंट्री के लिए लॉस होता है. सो एजुकेशनलिस्ट ने एक प्लान करा है. व्हाई डोंट यू हैव कंपटीशन? हम कुछ मूवीज में देखते हैं ना यार, दो गांव के बीच में एक युद्ध होता है, छोटा सा कंपटीशन होता है, या कुश्ती का होता है, या नहीं तो बैलगाड़ी का होता है, राइट. ये होता है. होने के बाद जो गांव जीतेगा वो गांव दूसरे गांव को डोमिनेट करेगा. हिंदी मूवीज में बहुत देखा जाता है, राइट. वी यूज्ड टू सी लॉट दिस इन मूवीज. Like there will be a competition of whether it may be a wrestling, it might be a bullock cart races, something will be, some races will be there, and whichever the villages win, that villages will be dominating or ruling that entire village or these two villages, right. This used to happen in the same way. At that time also it used to happen. So educationalists suggested to have the games. Slowly the games used to grow like anything, like something like ट्री विल बी ओनली इन ए स्मॉलर सीट. इन द सेम वे कॉम्पिटिशन छोटे साइज में स्टार्ट हुआ है, पर इट हैज टेकिंग ए बिग रोप. सो नीम ट्री इज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्री, राइट. नीम ट्री कितना बड़ा होता है यार, पर नीम ट्री निकलने के लिए क्या चाहिए? एक बीज चाहिए. बीज का साइज कितना होता है? इतना ही होता है, राइट. सेम उसी तरह धीरे धीरे क्या ओलंपिक्स का शेप ले लिया है, राइट. सो एंशिएंट ओलंपिक्स कहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है? ग्रीक में ऑर्गेनाइज होता है. ओनली ग्रीक पीपल आर अलाउड टू पार्टिसिपेट. दैट्स द रीजन आई टोल्ड इट यूज्ड टू हैपन ओनली इन द ग्रीक. सो ओनली ग्रीक पीपल
पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो ये फर्स्ट टाइम कब स्टार्ट हुआ? इट हैज़ बीन स्टार्टेड इन द ईयर 776 BC। सो हाउ डू आई रिमेंबर? देखिए बहुत सारे लोग को ईयर्स याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सो अरे कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ यार, सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम टू रिमेंबर द ईयर्स, राइट। तो हाउ डू आई रिमेंबर इट? आई कीप इट एज एन फैंसी नंबर 777, right, 777, and one is BC, one is okay, BC and one is AD. So BC में start हो गया AD में, so first is the BC, then fall after that AD, right? So 777 is my number। 777 को एक साल पहले, right, ये याद रखेगा। so 777 के एक साल पहले क्या होगा? 776 BC। so स्टार्टिंग में मैं क्या बताया हूँ? इट इज नॉट कॉल्ड एज एन ओलंपिक्स, इट यूज्ड टू बी कॉल्ड एज एन रिलीजियस फेस्टिवल, राइट? डू यू रिमेंबर दैट? इट यूज्ड टू बी कॉल्ड एज एन रिलीजियस फेस्टिवल। सो रिलीजियस फेस्टिवल मतलब अब यहाँ पे बहुत सारे रिलीजियंस हो गए यार। कोई मॉस्क को जाता है, कोई चर्च को जाता है, कोई टेम्पल को जाता है, कोई गुरुद्वारा को जाता है एट दैट टाइम। सो एक एक रिलीजियस फेस्टिवल को एक एक गॉड के पास जाते हैं एट दैट टाइम। ये सारे कौन से गॉड के पास जाते हैं? ग्रीक पीपुल यूज टू गो टू द गॉड जियस। कौन से गॉड के पास जाते हैं? जियस के पास। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, सी देर आर मेनी स्टोरीज, एक दिस इज वन ऑफ द स्टोरी, देर आर मेनी स्टोरीज। और कुछ है, और क्या है, जियस गॉड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है, तो उनके सन ने उनको कूल करने के लिए एक कॉम्पिटिशन स्टार्ट करे है, बोल के बहुत सारे स्टोरीज है। इट्स नॉट लाइक दैट दिस इज द ओनली स्टोरी। देखिए यार, देर इज नो सच लाइक यही करेक्ट है बोल के नहीं बता सकते, समझ रहे हो? दिस इज वन ऑफ द स्टोरी, इट्स नॉट ओनली द स्टोरी, इट्स वन ऑफ द स्टोरी। बहुत सारे स्टोरीज है, ओके, राइट। सो कौन से गॉड के नाम पे होता है ये रिलीजियस फेस्टिवल? जियस गॉड के नाम पे होता है, राइट। सो ऑर्गेनाइज फर्स्ट टाइम इन ओलंपिया, पहली बार कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? ओलंपिया, इसलिए इसे ओलंपिक्स बोल के नाम हमने दिया है। इट्स नॉट द नेम गिवन बाय एंशिएंट पीपल, एंशिएंट पीपल ने नाम नहीं दिया है, ओके, राइट। सो ऑर्गेनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओलंपिया, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज एन ओलंपिक्स, गॉट इट। सो कब स्टार्ट हुआ? इसमें से दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। सो इन विच ईयर इट हैज बीन स्टार्टेड? 776 BC। Second, on whose name the Olympic Games used to be celebrated? On the name of the god Zeus. These are the two important questions where you can remember it out. So देखिए, हर चीज का एक एंड होता है, राइट? सेम उसी तरह एंशिएंट ओलंपिक्स का भी एंड हो गया है। सो कौन से ईयर में एंड हो गया है? 394 AD, राइट, 394 AD। सर आप बताइए इसको कैसे याद करोगे? राइट, इसको मैं कैसे याद रखता हूँ? मॉडर्न ओलंपिक्स हैव स्टार्टेड इन द ईयर 1896, राइट, 1896। सो इसको बेस करके याद रख लेता हूं मैं, समथिंग लाइक इसके 1900 को यहाँ पे 4 इयर्स बाकी है, राइट, यहाँ पे 6 इयर्स बाकी है 400 बनने के लिए। सो दिस इज, यू कैन रिमेंबर बाय योर ओन वे यार, ऐसे ही याद रखना। देखिए 400, यू कैन रिमेंबर 400 माइनस 6, ऐसा भी कर सकते हो, राइट। सो कौन से ईयर में एंड हो गया? 394 AD में एंड हुआ। सो किसने एंड किया? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सो थियोडियस इज ए रोमन किंग। कौन से कंट्री का किंग है? तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी है यार। सो अथेन, ग्रीक के ऊपर, ऑन ग्रीक रोमन्स वेंट फॉर ए वॉर एंड इन दैट ग्रीक रोमन पीपल वॉन एंड ग्रीक पीपल हैज लॉस्ट इट। सो रोमन जीतने से क्या हो गया? यहाँ पे क्या हो रहा है यार, यहाँ पे कोई कंट्री जीतेगा ना अगर, तो उसका एक सर्टेन पार्ट चले जाएगा, सर्टेन पार्ट वो लोग ऑक्यूपाई करेंगे। पर यहाँ पे ग्रीक एंड रोमन में क्या होता है? पूरे कंट्री को डोमिनेट कर देता है। रोमन स्टार्टेड डोमिनेटिंग एंटायर कंट्री। सो इन दोज ओल्डन डेज दे यूज्ड टू डोमिनेट एंटायर कंट्री, नॉट द स्पेसिफिक प्लेस, राइट। सो क्या हो गया है? सो रोमन एक किसका फेस्टिवल है? ग्रीक का फेस्टिवल है, तो रोमन्स का तो नहीं होता, राइट। सो रोमन्स का ना होने से क्या कर रहे हैं? रोमन्स यूज्ड टू हैव फन, मतलब जब भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं पैसा देकर, हाँ, वो रोमन जीते ऐसा कर लेते, या नहीं तो डरा कर धमका कर कुछ ना कुछ करके बहुत ज्यादा चीटिंग हो गया, बहुत ज्यादा चीटिंग हो गया, अनफेयर थिंग्स हो गया, मतलब वो स्पिरिट जो रहता है ना, ओलंपिक स्पिरिट चले गया है। क्या? चीटिंग, right? Why did Olympics stop? मतलब ancient Olympics stop, it is because of the cheating, unfair competition, okay, and most importantly spirit has lost, समझ गया हो ना? So these are the, so
अल्टीमेटली व्हाट यू हैव टू डू, इफ यू अगर आपको 3 पॉइंट्स ना मिले तो इसके रिलेटेड का, सो बिकॉज ऑफ द अनफेयर थिंग अनजस्टिस, यू कैन ऐड अनजस्टिस आल्सो, राइट अनजस्टिस लाइक दिस, यू कैन ऐड नंबर ऑफ थिंग्स. सो उसकी वजह से ओलंपिक्स को स्टॉप किया. सो रोमन किंग थियोडियस ने क्या करा यार, यहाँ पे तो पूरा कंपटीशन का इसका स्पिरिट ही चला है, पूरा अनफेयर थिंग चल रहा है. तो थियोडियस किंग जो कि रोमन से बिलोंग करता है, उसने एक डिक्री पास किया है, उसने एक डिक्री पास किया इन द ईयर 394 AD टू स्टॉप द ओलंपिक्स. सो दिस इज द एंड ऑफ द एंशिएंट ओलंपिक्स, राइट. हमने क्या देखा है, सो इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें दो इंपॉर्टेंट, इन विच ईयर द ओलंपिक गेम एंशिएंट ओलंपिक गेम्स हैज बीन स्टॉप्ड, 394 AD. नेम द किंग हु स्टॉप्ड, दैट इज थियोडियस. ओके, थियोडियस. सो हाउ डू आई रिमेंबर, आई रिमेंबर TH द, ओके, थी, ऐसे याद रख लेता हूँ. सो इवन आई हैव ए डिफिकल्टी इन रिमेंबरिंग द ईयर्स, बट आई डू सम झमेला सो दैट आई रिमेंबर इट एक्चुअली. सो एंशिएंट, सो रूल्स ऑफ द कॉम्पिटिशन वी आर डिस्कसिंग अबाउट एंशिएंट, राइट, एंशिएंट ओलंपिक्स. एंशिएंट ओलंपिक्स के बारे में बातचीत चल रही है ना. सो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी कौन किसके बारे में बात करेंगे, एंशिएंट ओलंपिक्स. सो इसके रूल्स तो बहुत इजी होते हैं यार, ज्यादा झमेला कुछ नहीं होता है. पार्टिसिपेशन के लिए वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द गेम रूल्स, we are not talking about the game rules, we are talking about the competition. मतलब और एंट्री कैसे होना चाहिए, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, उसके बारे में समझ रहे हो ना. सो रूल्स ऑफ द कॉम्पिटिशन्स आर वेरी वेरी इजी. कॉम्पिटिटर्स मस्ट, ऐसे नहीं कि रोमन से आ गया है, वहां फ्रांस से आ गया, बेल्जियम से आया, ऐसा नहीं. इट्स ओनली फ्रॉम द ग्रीक. I should be a citizen, I am an Indian citizen, right, I am a Indian. So only Greeks are allowed to participate. So I am not allowed to participate in ancient Olympics. Okay, savages, right. Next point क्या है, slaves. It's nothing but slaves. जो भी slave होता है ना यार, देखिए, if you remember, अब्राहम लिंकन is one of the person. अब्राहम लिंकन है जो कि स्लेवरी को निकाल दिया यूएसए से, धीरे धीरे पूरा स्प्रेड हो गया है, राइट. हर एक कंट्री का एक एक रहता है. जो भी स्लेव होता है, जो भी पनिशमेंट में रहता है, स्लेव एंड जो भी पनिशमेंट में रहता है, वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते एंशिएंट ओलंपिक्स में, राइट. सो कमेंट में करके बताइए, एंशिएंट ओलंपिक्स आल्सो, एंशिएंट ओलंपिक्स वे आर आल्सो कॉल्ड एज एन, कमेंट में बताइए. नहीं देने पे भी कोई फर्क नहीं, कोई नहीं यार. ओके, सो ओलंपिक, एंशिएंट ओलंपिक्स वे आर आल्सो कॉल्ड एज एन डैश, कमेंट करके बता दीजिए, राइट. सो स्लेव्स एंड जिसको भी पनिशमेंट मिला है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ग्रीक में. सो ये लोग को कितना ट्रेनिंग करना पड़ेगा ना यार, एग्जाम्स के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, सेम उसी तरह वो लोग को कॉम्पिटिशन्स में आने के लिए ट्रेनिंग करना पड़ेगा. ट्रेनिंग का कितने महीने का ट्रेनिंग करना पड़ेगा, 10 months ट्रेनिंग करना पड़ेगा. 10 months में, आउट ऑफ 10 months 9 months यूज टू बी एट देयर स्टेट, अपने स्टेट में 9 months प्रैक्टिस करना है. 1 month ओलंपिया होता है ना, जहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, ओलंपिया, एग्जैक्टली 10th month. सो 9 + 1 कितना हो गया, 10 हो गया. ओके, सो 10 months का ट्रेनिंग लेना है, जिसमें 9 months अपने स्टेट में प्रैक्टिस करना है, पसीना निकलना है. एंड लास्ट मंथ जो कि ओलंपिया में होता है ना, ओलंपिक्स एरिना होता है ना, कंपटीशन एरिया में, हम अब क्या करते हैं, खाली एक दिन पहले या 2 दिन पहले या कंपटीशन के सुबह वहां पे चले जाते हैं, कंपटीशन के दिन ही वहां पे रीच होता है. पर यहाँ पे 1 month पहले आना होता है, राइट. आके वहां पे ट्रेनिंग करना होता है. वुमेन्स वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट और सी. यहाँ पे क्या एक बताना है, वुमेन्स देखना भी नहीं है, राइट, पार्टिसिपेट भी करना नहीं. जब देख रहे ही नहीं तो पार्टिसिपेट. बट आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर फ्यू ईयर्स, कुछ ईयर्स के बाद क्या हो गया है, married women are allowed to see but not participate. समझ लो, married women are allowed to see but not allowed to participate. Only married women, unmarried women, because they used to participate nude. All the male used to participate nude, क्योंकि it's all about the strength, right. Only amateur sports person can participate. Amateur मतलब क्या है, the one who plays the game for love and passion.
ओके, पैसे कमाने के यार, जीतने से मैं कितने पैसे आते हैं, मैं पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ, एक प्रोफेशनल बिजनेस नहीं करना है, लव एंड पैशन होता है ना उसे। सो यहाँ पे वुमेन्स के उसमें, सो वुमेन्स के लिए क्या है, वुमेन्स के लिए बीरा, इन फ्यू बुक्स इट इज रिटन एज बीरा एंड फ्यू बुक्स इट इज रिटन एज हीरा। ओके, मेल के लिए, ओके, मेल के लिए कौन से गॉड पे होता है, जियस। So the wife of Zeus is, in few books it has written as Hera and in few books it has written. So females के लिए ये लोग के नाम पे होता है, separate competition, not the same competition, separate competition होता है, but not इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताया गया नहीं, only this point has been given, that's it. Okay, so अब देखते हैं ओपनिंग सेरेमनी, राइट। ओपनिंग सेरेमनी कैसे होता है यार, आप बाहुबली मूवी देखे हो ना, बाहुबली वन, हाँ बाहुबली 1 and 2, राइट। युद्ध के, आई गेस बाहुबली 1, युद्ध के समय पे क्या होता है यार, बड़ा ऑक्स को सैक्रिफाइस किया जाता है बड़े स्टैच्यू के सामने, राइट, डू यू रिमेम्बर। सेम उसी तरह, सेम वही वाला फंडा यहाँ पे भी होता है, राइट। यहाँ पे ओपनिंग से सारे प्लेयर्स, हमारे पास मार्च पास्ट में क्या होता है यार, मार्च पास्ट में क्या होता है, फॉर आवर मार्च पास्ट ओनली एथलीट्स यूज टू पार्टिसिपेट, राइट। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। एंशिएंट ओलंपिक्स में क्या होता है, ऑल प्लेयर्स जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है वो उसका ब्रदर, उसका फादर और उसको जो ट्रेन किया है ना, मतलब कोच, राइट। सारे प्लेयर्स जो पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका भाई, उसका पापा और उसका ट्रेनर। अब ये क्वेश्चन मत पूछिए सर, अगर किसी का भाई ना हो, किसी का ब्रदर ना हो तो कैसा, सो इट हैवंट रिटन एनीवेयर कि ना होने से क्या होगा। ओके, सो वी आर डिस्कसिंग ओनली हिस्ट्री कैसा होता है यार, जो है वो पढ़ सकते हैं, वी कैन नॉट मॉडिफाई इट, राइट, वी कैन नॉट प्रूव फ्यू थिंग्स, इट्स नॉट लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री दैट वी कैन प्रूव इट आउट, राइट। सो हिस्ट्री मतलब जैसे है वैसी पढ़ सकते हैं, वी कैन नॉट alter it, right। so ये सारे लाइनअप हो जाते हैं फॉर द ओथ। ओके, all players brothers fathers and trainers assemble for oath to participate as per rules and regulation, for oath to participate as per rules and regulation and they got 10 months of training। मतलब ये क्यों लाइनअप होते हैं, क्यों मार्च पास्ट में क्यों आते हैं, ओथ लेने के लिए कि ये मेरा भाई, ये मेरा बेटा, ये मेरा ट्रेनर ने 10 मंथ्स का ट्रेनिंग लिया है एंड सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। सो ये ओथ हो जाने के बाद क्या होगा, एक पिग होता है ना, पिग वाज किल्ड एंड ऑफर टू गॉड जियस। सो गिव योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ये गॉड जियस इज फॉर द मेल, राइट। फीमेल के लिए कौन सा, फीमेल के लिए कौन से गॉड होता है बता दीजिए, राइट। आफ्टर द पिग, सो पिग को सैक्रिफाइस किया जाता है आफ्टर द, राइट, आफ्टर द ऑफर ऑफ पिग टू गॉड्स, यस, एथलेट्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू द स्पेक्टेटर्स। मतलब देखिए फॉर एग्जांपल दिस इज द ग्राउंड, पुराने ग्राउंड्स कैसे होते हैं यार, सो यहाँ पे किंग का पूरा ऐसा सेटअप होता है एंड ये पूरा एरिया होता है, यहाँ पे पूरा गैलरी होता है, राइट, दिस यूज्ड टू बी द गैलरी, राइट। तो क्या होता है यहाँ पे सारे ऑडियंस बैठते हैं ना, उसके बाद क्या होता है, सो ऑल एथलेट्स यूज्ड टू स्टैंड हियर वन आफ्टर द अदर। यहाँ पे आसिफ सर पहले आ जाते हैं, तो यहाँ पे पूछे आसिफ सर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने से किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, अगर कोई सारे साइलेंस है समझिए, इट मीन्स साइलेंस मीन्स नो ऑब्जेक्शन, साइलेंस मीन्स नो ऑब्जेक्शन। अगर किसी को गुस्सा है आसिफ सर के ऊपर, आई हैव ए ऑब्जेक्शन, देन आई नीड टू डू जस्टिफिकेशन, राइट। क्यों ऑब्जेक्शन है बताना चाहिए, इफ इट इज जेन्यून ही विल बी थ्रोन आउट। कौन थ्रोन आउट, पार्टिसिपेट। सो नो ऑब्जेक्शन के लिए यहाँ पे लगाया जाता है। सो नो इट इज नॉट यूज, तो एक के बाद एक सारे आते हैं, नो ऑब्जेक्शन करा देते हैं। नो ऑब्जेक्शन का फॉर्मेलिटी हो जाते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ द गेम्स ओपन, गेम्स ओपन हो जाते हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर द गेम्स। सो इट हैज बीन स्टार्टेड विद 400 yards वॉकिंग इन, ओके 400 yards। देखिए वी वर डिस्कसिंग अबाउट 776 BC। देखिए हिस्ट्री कैन नॉट बी मॉडिफाइड, सो बट बिफोर दैट ऑल्सो देयर वर फ्यू गेम्स, समझ रहे हो ना, 776 BC, राइट, बिफोर दैट ऑल्सो फ्यू मोर गेम्स। सो इन दैट, राइट, 400 yards वॉकिंग इन 724 BC तक ये था, उसके बाद 720 BC तक ये रिवर्स आता है ना, 720 BC, देन 708 BC, देन बॉक्सिंग 668 BC, हॉर्स रेस
मतलब बॉक्सिंग मतलब पूरा ऐसा रिंग लगा के, ऐसा ग्लव्स लगा के, ऐसा हेलमेट लगा के, पूरा ऐसा जॉकेट लगा के, कुछ नहीं, जाओ खिपा खिप मार लो, वो लोग का पूरा अलग ही होता है यार। ओके, सो उसके बाद क्या हो गया, देखिए यार पॉपुलरिटी बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, बिजनेस पहले छोटा स्टार्ट करेंगे, तो बिजनेस मस्त चल गया तो धीरे धीरे बड़ा करेंगे। सेम उसी तरह वन डे, इट यूज टू बी फॉर द वन डे फॉर एवरी 4 years, बट स्लोली इट हैज बीन फॉर 5 days फॉर एवरी 4 years। ओके, समझ गया हो ना। सो डे वन में ओनली रिलीजियस लाइक को पिग्स को सैक्रिफाइस किया जाता है, ऑक्स को सैक्रिफाइस किया जाता है, बस यही हो जाता है बस। सो इट वाज आल्सो सेड इन वन ऑफ द बुक्स 1000 ऑक्स यूज्ड टू बी गिवन फॉर सैक्रिफाइस। 1000 ऑक्सेस सैक्रिफाइस करना है गॉड के सामने, बोल तो कितना देर लगेगा, बहुत देर लगेगा। सो डे 2 में क्या होता है, मार्च फर्स्ट। मार्च फर्स्ट के बाद इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या क्या होता है यार, डोंट फॉरगेट, नो ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन, राइट। चैरिट रेस, जो कि हॉर्सेस पे होता है ना, 2 हॉर्सेस रहते हैं, ऐसा भागते हैं, टांग, वी कॉल इट ए टांगा के ऐसा, ऐसा हॉर्स है, सिंगल हॉर्स। देन पेंटाथलन 5 इवेंट्स वाला भी इवेंट होता है। सो डे 2 में ये होता है। डे 3 में क्या होता है, डे 3 में अगेन बैक टू डे 1, रिचुअल्स ऑफ सैक्रिफाइस ऑफ एनिमल्स। ओके, सैक्रिफाइसेस ऑफ एनिमल्स, यहाँ पे हॉर्सेस, राइट, यहाँ पे हॉर्सेस। उसके बाद रेसेस, wrestling एंड बॉक्सिंग। डे 4 में क्या होता है, एथलेटिक इवेंट्स लाइक रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग होता है, wrestling एंड बॉक्सिंग। okay, wrestling, it might, I guess you cannot see this, so the thing over there is boxing, right। एथलेटिक इवेंट्स, wrestling एंड बॉक्सिंग होता है। सो डे 5, डे 5 में क्या होता है, मस्ती मजा, क्लोजिंग सेरेमनी, कैंप फायर होता है ना स्पोर्ट्स डे में। ओके, कैंप फायर क्या करते हैं, 2 days प्रोग्राम रहने से फर्स्ट डे, ओके, फर्स्ट डे नाइट लगाते हैं, 3 days रहने से सेकेंड डे नाइट लगाते हैं ना, सेम उसी तरह। सो 5 डे प्रोग्राम, 5 डे प्रोग्राम में लास्ट डे क्या होता है, रिक्रिएशनल प्रोग्राम, मतलब मस्ती मजा, राइट, मस्ती मजा होता है प्रोग्राम में, राइट। नेक्स्ट अवार्ड्स क्या दिया जाता है, यहाँ पे ऐसा वी विल बी गिवन मेडल्स, राइट, मेडल्स, बट नो, मेडल्स यहाँ पे नहीं दिया जाता, बिकॉज एट दैट टाइम्स मेडल्स वेर नॉट देयर, नाउ देयर वेर डिफरेंट थिंग्स। सो फूड ग्रेन्स, खाने वाला अनाज दिया जाता है, क्योंकि ओके, अनाज बहुत ज़्यादा होता है ना, वो टाइम पे खाने के लिए भी बहुत दिक्कत होता है, तो फूड ग्रेन्स दिया जाता है। एनिमल्स दिया जाता है उससे बिजनेस करने के लिए, वेर गिवन एज रिवॉर्ड। क्या क्या दिया जाता है, फूड ग्रेन्स एंड एनिमल्स। उसके बाद क्या होगा, क्रॉन लीव्स, ओके, मेड ऑफ ओलिव ट्री। ये ओलिव ट्री कहाँ होता है, कहाँ से होता है ओलिव ट्री, टेम्पल में। कौन से टेम्पल में, कैन यू गेस, इट इज जियस टेम्पल में ओलिव ट्री को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है एंशिएंट ओलंपिक्स में। सो उस लीव्स के साथ, उस झाड़ के हेल्प के साथ, उस झाड़ के पार्ट्स के हेल्प के साथ एक क्राउन बनाया जाता है। यू माइट बी हैव सीन, एथेंस में कभी कभी ऐसा लगाते हैं ना, क्राउन लगाते हैं, जो कि पूरा वाइट से बना होता है, राइट, वो वाला। सो मोर स्ट्रेस ऑन रेस्पेक्ट एंड हॉनर, हॉनर एंड रेस्पेक्ट के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है। तो इसके क्या किया गया है, स्टैच्यूज बनाया गया है। जैसे अब हमारे पास महात्मा गांधी जी का स्टैच्यू होता है, ग्रेट लीडर, क्या ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स के स्टैच्यूज होते हैं ना, अब हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के, स्वामी विवेकानंद जी के, सेम उसी तरह स्टैच्यूज बना के उनके उनके सिटीज में लगाया जाता है। ओके, स्टैच्यूज वर मेड ऑफ विनर्स, हु विच विनर्स यार, ओलंपिक विनर्स, ओलंपिक विनर्स के लिए। सो पोएम्स, लाइक पुराने जमाने में राजा के लिए एक पोएम, एक गाना गाते हैं, गाना में किंग के बारे में बहुत बड़ा बड़ा बताते हैं ना, मतलब बड़ा वो किंग इतना ग्रेट है, किंग इतना अच्छा है, किंग इतना रॉयल रहता है, पूरा गाने में बताते हैं, पोएम्स में बताते हैं। सेम उसी तरह किसको बताया जाता है, अदर देन किंग्स, ओलंपिक विनर्स को भी बताया जाता है। पोएम्स वेर कंपोज्ड ऑन प्रेज एंड रिकॉर्डेड देयर नेम्स इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में लिखाया जाता है। ओके, सो अब तक हमने क्या देखा है, मॉडर्न एंशिएंट ओलंपिक्स। सो अब हम क्या देखने वाले हैं, मॉडर्न ओलंपिक्स। मॉडर्न ओलंपिक जो अब चल रहा है ना, सो 2021 का मॉडर्न ओलंपिक्स कौन से कंट्री में होने वाला है, गिव योर आंसर। ओके, इट हैज टू ऑर्गेनाइज्ड इन 2020 बट इट इज ऑर्गेनाइजिंग इन 2021। सो कौन से कंट्री या सिटी, नेम द कंट्री और द सिटी वेयर द मॉडर्न 2020 का पोस्टपोन टू 2021 बिकॉज ऑफ कोविड, राइट, कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन हुआ है 2021 के। सो कौन से कंट्री में होने वाला है बताइए। सो
Modern Olympics. Who is the father of modern Olympics? The most important question. Pierre Baron de Coubertin. So de Coubertin के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है. Pierre Baron बहुत ज़्यादा लोग यूज नहीं करते. But the full name is Pierre Baron de Coubertin. Pierre Baron de Coubertin, right? So in the year, so 1896 में स्टार्ट हुआ है. बट एक ही दम तो स्टार्ट नहीं होगा ना, उससे पहले थोड़ा प्लानिंग होता है, थोड़े मीटिंग्स होता है. सो द फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग वाज, इससे पहले बहुत ज़्यादा हुए हैं. It is also said that in 1600s also Olympics were organized, but they were not successful. In 1700 also, but there were, it was something written somewhere, but there is no full proof. So proof कहाँ से है? यहाँ से 1894 में 13 countries, समझ रहे हो ना, 13 countries 13 countries मीटिंग में अटेंड हुए कि लेट्स ट्राई इट फॉर द मॉडर्न ओलंपिक्स बोलकर. सो 1896 में, राइट, एज आई टोल्ड यू हियर, 1896 में फर्स्ट टाइम मॉडर्न ओलंपिक्स हुआ है. कितने कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ओनली 9 कंट्रीज. 3 3 9. ओके, 3 3 9 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं. पर 1972 आने तक, सो बिफोर दे कंप्लीट 100 years, इट वाज 122 कंट्रीज. मतलब स्टार्टिंग में सिंगल डिजिट, नाउ ट्रिपल डिजिट में आ गए. कितना कितना बड़ा अचीवमेंट है यार. 122 कंट्रीज विल यूज टू पार्टिसिपेट, ओके, बाय 1972. सो देखिए यार, हर चीज़ के लिए एक मोटो होता है. आपके स्कूल का भी मोटो होता है, आपके कॉलेज का भी मोटो होता है. सेम उसी प्रकार ओलंपिक्स. देखिए द सेम थिंग विल बी किसमें, यहाँ नेक्स्ट टॉपिक में आता है, ओलंपिक सिंबल्स में आता है. बट इन ओलंपिक सिंबल्स वी आर नॉट गोइंग टू चेक ऑल दोज थिंग्स. ओके, ओलंपिक सिंबल्स में हम ये सब नहीं देखेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स यहाँ पे ही कवर हो जा रहा है. ओके, ओलंपिक का मोटो क्या है? माई, हाउ डू आई रिमेंबर साइटस, अल्टियस एंड फोर्टिस. हाउ डू आई रिमेंबर कॉफ, CAF, कॉफ. हमारा नी के नीचे बैक साइड होता है ना, उसे हम कॉफ कहते हैं. ऐसा लेग ऐसा होता है ना, ये नी होता है एंड उसके नीचे ऐसा कॉफ होता है ना, देन फिर ऐसा लेग होता है. आई एम वेरी गुड एट ड्राइंग, ओके, प्लीज डोंट माइंड. राइट, साइटियस, अल्टियस, फोर्टिस. सो आई रिमेंबर कॉफ. यार कॉफ चढ़ गया यार, कभी नींद में यहाँ पे चढ़ता है ना, घुटने के नीचे बैक साइड, नींद में ऐसा चढ़ जाता है, रनिंग में कभी चढ़ जाता है, उसे कॉफ कहते हैं. राइट, सो साइटियस, अल्टियस, फोर्टिस. इसको, दिस इज ए लैटिन वर्ड, दिस इज ए लैटिन वर्ड. सो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से, दिस इज ए लैटिन वर्ड, इसे इंग्लिश में ट्रांसफर करने से, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर. यू नीड टू रन फास्टर, यू नीड टू जंप हाई, एंड यू नीड टू थ्रो for a long distance, right? So you need to be stronger to throw, you need to be reach higher, and you need to be very fast. So it is a Latin word. Who has given this Olympic motto? It has been given by Didon. Didon ने दिया है कौन से ईयर में? So 1894 में मीटिंग हुआ है, 1895 में मोटो दिया गया है, 1896 में ओलंपिक स्टार्ट हुआ है, एंड 1900 में इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है. कौन से ईयर में पार्टिसिपेट कर रहा है इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? इन द ईयर 1900. राइट, समझ गए ना. सो ओलंपिक फ्लैग, ओलंपिक फ्लैग. सो यहाँ पे क्या है, ओलंपिक फ्लैग के बारे में एंड टॉर्च के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट, ओलंपिक सिंबल्स, दिस टू आर द ओलंपिक सिंबल्स. दिस टू आर द ओलंपिक सिंबल. सो अब हम देखने वाले हैं ओलंपिक फ्लैग के बारे में. एक्चुअली देयर विल बी 2 फ्लैग्स, आगे बताऊंगा. ओके, सो ये कौन से ईयर में क्रिएट हो गया है? 1913. सो नाउ यू हैव ए क्वेश्चन. एक्चुअली 1914 ओलंपिक्स हैज बीन कैंसल. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? गिव योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स. ओके, सो गिव इमीडिएटली, अदरवाइज बीच में मैं कहीं ना कहीं बताने वाला हूँ. ओके, सो क्रिएटेड इन द ईयर 1913. बट एक्चुअली देखिए 1896 में स्टार्ट हुआ है, 1900 में एक, 1904, 1908, 1912, 1916, 1920. देखिए इट हैज बीन क्रिएटेड इन द ईयर 1913. कब क्रिएट हुआ है? 19, मतलब यहाँ पे 1913 में, मतलब वेयर इट हैज टू होस्टेड एक्चुअली 1916, बट दिस ओलंपिक्स हैज बीन कैंसल्ड. सो इसे कैंसल बोल के नहीं बोला जाता है, नॉट सेलिब्रेटेड. इसे क्या बोला जाता है? नॉट सेलिब्रेटेड. दिस यूज्ड टू बी रिटन हैज नॉट सेलिब्रेटेड. सो 1916 में नहीं हुआ, 1913 में होता है, 1916 में तो कर सकते हैं ना हॉश, दे कैन हॉश इट, बट दे डिड नॉट हॉश इट. सो व्हाट, इट हैज बीन कैंसल. व्हाई इट हैज बीन कैंसल? यू गिव द आंसर इन द
comment box, right? So it has hoisted for the first time in the year 1920. So it has to be फ्लैग कैसे होना चाहिए, वाइट सिल्क क्लॉथ होना चाहिए, 5 रिंग्स होना चाहिए, ओके, देयर शुड बी 5 रिंग्स रिप्रेजेंटिंग कॉन्टिनेंट्स, ओके, रिप्रेजेंटिंग कॉन्टिनेंट्स. देखिए 5 रिंग्स, सो ईच ब्लू, okay, blue, black, red, yellow, green. So blue represents Europe, black represents Africa, green represents Australia, and yellow represents Asia, green represent red represent blue, black, red, sorry, red represents America, right? देखिए, so it has been, देखिए my eyes है blue, black, red, yellow, green, अरे पर यहाँ तक क्यों जम्बलिंग है? So it, how it has to read is blue, yellow, right, then black, green, red. It has to be in W shape. समझ गए हो ना? It has to be read in W shape. यहाँ पे blue, right, यहाँ पे yellow, black, right, red, green, blue, black, red, yellow, green. Now it has to be read in W shape, okay? So each, okay, each color represent one continent, so these are the continents, okay? So Olympic flame, ओलंपिक फ्लेम मतलब क्या, एक टॉर्च होता है यार, बस इसमें लाइट, आप टॉर्च रन करते हैं ना, बस वही वाला है, राइट? So Baron de Coubertin, who has designed flag also designed by Baron de Coubertin, and flame Olympic torch also has been designed by de Coubertin. So for the first time in the year it has been used in the 1936. So 1936 के बाद 1940 and 1944 को भी Olympics को not celebrated कहा जाता है. So what is the reason? So 1916 is also the same reason. ओके, कमेंट करके बता दीजिए. सो ओलंपिक अवार्ड्स में क्या दिया जाता है? सो एंशिएंट में क्या दिया जाता है? क्राउन, फूड ग्रेन्स दिया गया है, एनिमल्स को दिया गया है, क्राउन दिया गया है, उसके बाद स्टैच्यूज बनाया गया है, उसके बाद पोएम्स में उसका नाम लिखा गया है, हिस्ट्री में उसका नाम लिखा गया है. बट यहाँ पे ये पूरे काम नहीं करेंगे. यहाँ पे क्या करेंगे? ओलंपिक अवार्ड्स में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड के लिए सर्टिफिकेट एंड मेडल दिया जाता है. क्या दिया जाता है? 1 2 3, ये तो पता ही है. बट वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, 4 to 8 को भी सर्टिफिकेट्स दिया जाता है. मतलब जो whoever goes into the finals they will get certificates of merit. It's not participation. ओके, टॉप 8 को सर्टिफिकेट मिला जाता है. सो ओलंपिक ओथ 1986 से लेके 2000 तक one Olympic has been used. In the year 2000, okay, बीजिंग में ओलंपिक को चेंज किया गया. यहाँ पे वी स्वेयर दैट से स्टार्ट होता है. वी स्वेयर दैट वी विल टेक पार्ट इन द नेम ऑफ द कॉम्पिटिशन फॉर द ईयर 2020 विद ड्यू रिस्पेक्ट, ऐसा कुछ है यहाँ पे. इन द नेम ऑफ ऑल कॉम्पिटिटर्स, इन द नेम ऑफ बोल के स्टार्ट होता है. सो दिस ओथ इज नॉट एट ऑल यूजफुल फॉर यू. ओके, इफ देर विल बी नो क्वेश्चन ऑन दिस, बट इफ देर इज एनी क्वेश्चन फ्रॉम द 2000 ऑफ बीजिंग ओलंपिक्स से ओलंपिक का ओथ चेंज हो गया है, राइट? सो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? वहां पे ओनली ग्रीक, बट यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया. मेल्स एंड फीमेल्स आर अलाउड टू पार्टिसिपेट. देखिए 1900 से इंडिया स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन ओलंपिक्स. Women are also allowed to participate from the year 19. So there were no women in the year 1986. Women started participating from the year 1900. Only amateurs. So as I told you, amateurs मतलब the one who play for love and passion, not for the money. Entries to be sent by National Olympic Committee. मतलब देखिए, you are an Indian. So who I want, मैं नहीं कह सकता हूँ I want to participate in Olympics. I cannot say it directly. So I need to perform well. Then only the Indian National Olympic Committee will send my entry to the International Olympic Committee एसोसिएशन. समझ गए हो ना? सो यहाँ से देखिए, आपके स्कूल से कहीं पार्टिसिपेट करने के लिए कौन भेजना चाहिए? आपका स्कूल भेजना चाहिए, राइट? स्टेट में पार्टिसिपेट करने के लिए आप डिस्ट्रिक्ट से आपका नाम स्टेट को जाना चाहिए. नेशनल में पार्टिसिपेट करने के लिए स्टेट से आपका नाम नेशनल्स को जाना चाहिए. इंटरनेशनल में करने के लिए इंडिया से आपका नाम वो ऑर्गेनाइजिंग कंट्री को जाना चाहिए. इज इट ऑन सेम? सो पार्टिसिपेट टू वन कंट्री ओनली. देखिए, यू आर एन इंडियन, यू कैन नॉट पार्टिसिपेट. सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 2020
you have participated on behalf of India, but you cannot participate in the 2024 to some other country. Only in two cases you can participate for another country. So you, if you have participated to one country, अगर आप एक country से participate कर रहे हो, you are not allowed to participate for some other country. Only in two cases. देखिए, for example, X is a country, you have participated from that country for the year 2021. So 2024 you can participate to another country. X can you can participate from Y country only in two cases. Case one, देखिए, the country might have captured, so X country has been captured by Y country, मतलब Y और X दो मिलकर एक country हो गया है. So the name has given as Y. So X and Y are the two different countries in the year 2020, but in the year 2024 X and Y has become a single country and it has been given a name Y. So you can participate from Y. समझ रहे हो ना? Or else in one more case, so X, you have participated for 2020 from the X, and from the X one more country has been created. एक नया country बन गया है. So the country name is A. Then you can participate from the country A. मतलब single country two parts में divide हो गया. Then also you can participate from that country. Okay, opening ceremony कैसा होता है? How the opening ceremony will be going on? So first of all ओलंपिक टॉर्च, सबसे पहले ओलंपिक टॉर्च को जलाया जाता है. ओके, कहाँ से? सनरेज से जलाया जाता है. कहाँ पे? एथेंस, ग्रीक में. देन वहां से ओलंपिक टॉर्च स्टार्ट होता है. आपको याद होगा एवरी ईयर एक बार आप टॉर्च रन के लिए जाओगे, राइट? सो वो पूरा सारा दुनिया फिरते फिरते जहां पे होस्ट हो रहा है वहां पे आएगा. ओके, उसके बाद प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना. देखिए, यूएसए में प्रेसिडेंट होता है, इंडिया में क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, राइट? एक एक कंट्री में एक इन फ्यू कंट्रीज इट इज एन प्रेसिडेंट, इन फ्यू कंट्रीज इट इज एन प्राइम मिनिस्टर. हमारे पास क्या है? प्राइम मिनिस्टर है. इज इट और नॉट? सो प्रेसिडेंट मतलब कौन सा हाईएस्ट लेवल पे जो होता है, इट्स नॉट प्रेसिडेंट. ओके, हमारे पास प्रेसिडेंट है, बट प्राइम मिनिस्टर इज द सुप्रीम अथॉरिटी होते हैं ना हमारे पास. सुप्रीम मे नॉट बी द सुप्रीम अथॉरिटी, मतलब हाईएस्ट पोजीशन जो है ना, थ्रू इलेक्शंस आते हैं ना, वो प्राइम मिनिस्टर. हम इंडिया में, यूएसए में प्रेसिडेंट. डिक्लेयर्स द गेम ओपन. ओके, उसके बाद क्या होता है? डिक्लेरेशन ऑफ द मीट ओपन के बाद मार्च पास्ट होता है, उसके बाद ओथ होता है एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटी, मतलब डिस्प्लेस होता है. सेम हमारे अपने स्कूल डेज में होता है ना यार, सेम उसी तरह, राइट? सो पैरा ओलंपिक्स किसके लिए होता है? फॉर whom दिस पैरा ओलंपिक्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड? This Paralympics is organized for physically disabled. For the physically disabled people के लिए होता है, right? So इसका भी एक छोटा स्टोरी है यार. सर लुडविग गट्समुथ, ही इज एन डॉक्टर. ये आर्मी डॉक्टर है. कौन से डॉक्टर? आर्मी. तो ये जब पैरा ओलंपिक्स में क्या हो गया? ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1940 एंड 44 में क्या हो गया? बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा डर गए यार. ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट जो भी कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा डर गए. डर जाने से क्या हो गया है? सो ये लोग का रिकवरी ना हो रहा है डर की वजह से. दे डोंट वांट टू, दे फील बेटर टू डाई बट दे डोंट वांट टू रिकवर. तो क्या हुआ है? सर लुडविग गट्समुथ ने क्या किया है? अरे यार, ये तो बहुत ज़्यादा डर के है ना, ये लोग का रिकवरी ना हो रहा है ना बोल के, ये लोग के लिए क्लेवरली उसने शूटिंग, क्योंकि ये सारे सोल्जर्स थे पहले, सोल्जर्स को शूटिंग का कंपटीशन लगाए. तो शूटिंग का कंपटीशन लगाने, जीतना हारना प्रैक्टिस करना बोलते, सो लालच में ये लोग रिकवर होना शुरू हो गए. दैट्स हाउ द ओलंपिक गेम हैज बीन स्टार्टेड. द फादर ऑफ पैरा ओलंपिक्स इज सर लुडविग गट्समुथ. सो ये भी एक वन ऑफ द मेजर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स है यार. किसके लिए? फॉर द डिसेबिलिटीज. Okay, major international multi-sports event for various disabilities as mobility disability, blindness and cerebral disabilities. So ये भी every 4 years को होता है. एक कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ? इन द ईयर 1960. कब से स्टार्ट हुआ? 1960 से स्टार्ट हुआ है. इसके बाद विंटर ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स का ही विंटर ओलंपिक्स कब से स्टार्ट हुआ है? 1976, मतलब 16 साल के बाद, 1916 1976, राइट? सो इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? हु टेक्स कंट्रोल? इट्स द आईपीसी, इंडियन पिनल कोच.
राइट, इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमिटी, राइट. सो इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमिटी सारा, सो नॉर्मल मॉडर्न ओलंपिक्स को कौन करता है? गिव योर आंसर इन द कमेंट. Who is the supreme authority who supervises and coordinates the world championship and other competition for modern Olympics? ओके, मॉडर्न ओलंपिक्स के लिए कौन करता है बताइए. ओके, सो विजन क्या है ये लोग का? विजन क्या है? पैरा ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स का विजन क्या है? व्हाट इज द विजन? टू एनेबल पैरा ओलंपिक एथलेट्स टू अचीव स्पोर्टिंग एक्सलेंस, स्पोर्टिंग में एक्सलेंस, एंड इंस्पायर एंड एक्साइट द वर्ल्ड. सारे दुनिया को बता दे, सारे दुनिया को इंस्पायर करे और हला दे, यही उनका विजन है. सो ये लोग का क्या है यार? मेडल्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को दिया जाता है एट द पोडियम एंड नेशनल एंथम ऑफ द विनर. सो देखिए, जो भी पैरा ओलंपिक्स हो, एंशिएंट ओलंपिक्स हो, विंटर ओलंपिक्स हो, स्पेशल ओलंपिक्स हो, कौन सा भी हो, जो फर्स्ट आता है ना, उस कंट्री का ओलंपिक, उस कंट्री का फ्लैग को हॉइस्ट किया जाता है, कंट्री का फ्लैग को फर्स्ट हॉइस्ट किया जाता है, एंड उसका नेशनल एंथम भी प्ले किया जाता है. सो ये लोग का पैरा ओलंपिक्स का क्या है? सो मॉडर्न ओलंपिक्स का कॉफ है, साइटियस, आल्टियस एंड फोर्टियस, फास्टेस्ट, हायर एंड स्ट्रॉन्गर, स्पिरिट इन मोशन टिल 2004. मतलब हर इंडिविजुअल कीप ऑन मूविंग होते रहना चाहिए, मूव होते रहना चाहिए. उसके बाद 2004 के बाद माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट हो गया ये लोग का ओलंपिक्स. सो डिसेबिलिटीज के कैरेक्टर कितने कैटेगरीज है? टोटल 10 कैटेगरीज. सर आपने तो ओनली 3 बताया है, पर यहाँ तो ऊपर 10 लिखा है. यस, देखिए फिजिकली ओनली कितने होता है यार? किसी का 1 लेग जाता है, किसी का 2 लेग्स जाता है, किसी का 1 हैंड जाता है, किसी के 2 हैंड्स जाते हैं. इज इट और ना? विजुअली किसी का 1 आई जाता है, किसी का 2 आईज जाता है. कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबल, समझ रहे हो ना? ऐसा होता है, किसी को सुनाई नहीं देता है, किसी को बात करने नहीं आता है, बहुत सारे रहते हैं. इज इट और नॉट? उसमें देखिए, जिसको 2 पैर नहीं है, क्या आप उसको 2 हाथ नहीं है वाले से कंपेयर करा सकते हो क्या? नो. सो फॉर दैट देयर विल बी कैटेगरीज. सो स्पेशल ओलंपिक्स किसके लिए होता है? इंटेलेक्चुअल डिसेबल, इंटेलेक्चुअल डिसेबल के लिए होता है. सो इंटेलेक्चुअल डिसेबल को एंड पैरा ओलंपिक्स, पैरा पीपल को क्या कहते हैं हम? CWSN, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स. ओके, स्पेशल ओलंपिक्स का भी एक छोटा सा स्टोरी है, बता देता हूँ. ओके, छोटा सा स्टोरी है. क्या है? देखिए, केनेडी इज द सिस्टर ऑफ यूरिक केनेडी इज द सिस्टर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ USA जॉन एफ केनेडी. तो इसकी एक फ्रेंड है, केनेडी की एक फ्रेंड है, केनेडी की फ्रेंड का बेटा, केनेडी फ्रेंड्स बेटा, ओके, बेटा इज एन इंटेलेक्चुअल डिसेबल. तो समर एवरी टाइम ही यूज्ड टू गो टू स्कूल, बट समर में क्या हो गया है? समर में उसका दिस फ्रेंड यूज्ड टू गो फॉर ए जॉब. ओके, बट समर में क्या हो गया? समर में स्कूल्स क्लोज होते हैं, तो क्या करना है बोल के केनेडी ने, सो शी स्टार्टेड शेयरिंग हर प्रॉब्लम विद द केनेडी. देन शी केम आउट विद पीपल विद आइडिया. तो उसके घर, केनेडी के बैकयार्ड में, केनेडी के बैकयार्ड में इंटेलेक्चुअल डिसेबल पीपल के लिए एक समर कैंप ऑर्गेनाइज करी है वो. उसमें थोड़े गेम्स करा दिए. देखिए, जैसे मैं बताऊं ना, छोटे बीन से बड़ा झाड़ निकल जाता है, सेम उसी तरह यहाँ पे भी एक समर कैंप से धीरे धीरे स्पेशल ओलंपिक्स बाहर आ गया है. राइट. सो इसने स्टार्टेड बाई यूनिक केनेडी ट्राइब. सो स्पेशल ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ? इन द ईयर 1968. देखिए, 1896 में मॉडर्न ओलंपिक्स, 1860 में पैरा ओलंपिक्स, ओके, एंड 1960 एंड 1968 में स्पेशल ओलंपिक्स, राइट, स्टार्ट हो गया. सो केनेडी फाउंडेशन एंड शिकागो पार्क डिस्ट्रिक्ट ने फर्स्ट टाइम 1971 में ओलंपिक्स का अप्रूवल लिया है बाय USA 1971 में, राइट. सो ये लोग का फ्लेम क्या है? स्पेशल ओलंपिक फ्लेम क्या? फ्लेम ऑफ होप. जज्बा रखना चाहिए यार, जज्बा रखना चाहिए, राइट. सो प्लीज, थैंक यू फॉर टुडे, thank you for this video, and we are going to meet for the part 2 of this video, okay, of this chapter unit 2, which is the Olympic, okay, Olympic value education. So please don't forget to subscribe my channel, and don't forget to share with your friends. अपने friends के साथ भी share करिए यार, okay. So please take care of yourself and your loved ones. Tada, bye bye, take care. Signing off for today.